हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ थ्री मॉडल विच वाज गिवन फॉर द लैटिस स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड्स। वो कौन कौन से थे उस पर हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें से कि जो सबसे पहला मॉडल था हमारा ड्यूलैंग-पेटिट लॉ विच वाज ए क्लासिकल मॉडल। अकॉर्डिंग टू द ड्यूलैंग-पेटिट लॉ, द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स इन अ सॉलिड्स बिहेव्स लाइक एज ए क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो इसकी वजह से जो total energy of that total internal energy of that solids will be 3 nkt or 3 rt, and when we differentiate it with respect to temperature, then we will get the specific heat, which is cv is equal to 3r, which has some constant value. So Dulong-Petit has suggested that the specific heat of all type of substances, it has a constant value, that is cv is equal to 3r, and it is independent of the temperature. But experimentally it was not observed. According to the experiments, it was found that the specific heat varies with respect to temperature, like this. But the Dulong-Petit law suggested that it has some constant value, like this dotted line. So there was a shortcomings in this model. That is why Einstein came up with his quantum theory of a specific heat, where the Einstein has assumed that atoms in solids behave like as a quantum harmonic oscillator, whereas Dulong-Petit has assumed that it was a classical particle, but classical harmonic oscillator. But Einstein has assumed that it will be a quantum harmonic oscillator. एंड आइंस्टीन ने ये भी अज्यूम किया कि जो एटम्स होते हैं, ईच एटम्स ऑसिलेट्स इंडिपेंडेंटली विदाउट अफेक्टिंग दियर नेबरिंग एटम्स. So all the oscillate with the same natural frequency due to the identical environment of each atoms. Since the oscillators are quantum oscillators, therefore they will have some discrete energy like this, E is equal to n h cut omega. So on the basis of this, they have calculated the total internal energy of that solid, and on the basis of quantum theory of a specific heat, they have found that at a high temperature, when kT is much greater than h mu, then the cv is 3r. At low temperature, when kT is much less than h mu, then the cv was found to be proportional. cv was found to be exponential decay, e to the power minus h mu upon kt. So cv varies with exponential factor. यहाँ पे ये भी है एच मी ओपन के टी का होल स्क्वायर ई की पावर माइनस एच मी ओपन के टी, बट एक्सपोनेंशियल टर्म हैज़ मोर विल बी मोर डोमिनेटिंग टर्म. दैट इज़ वाई इट वाज ऑब्जर्व दैट सी बी वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू एक्सपोनेंशियल टर्म्स. बट जो एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया था वो ये था कि जो सी बी है एट लो टेम्परेचर इट वेरीज विथ टी क्यू. सो जो आइंस्टीन्स का क्वांटम मॉडल था फॉर द लैटिस स्पेसिफिक हीट, ये भी फेल कर गया, क्योंकि इन्होंने ये अज्यूम किया था कि ईच एटम इट ऑसिलेट इंडिपेंडेंटली विद द सेम नेचुरल फ्रिक्वेंसी. तो इसको ओवरकम किया डिवाइन ने क्या अज्यूम किया? डिवाइन अज्यूम किया कि नहीं, जो एटम्स होते हैं किसी भी सॉलिड्स में वो इंडिपेंडेंट नहीं मूव करते हैं. उन्होंने बताया कि जो वाइब्रेशन ऑफ एटम्स होता है इट डिस्टर्ब द नेबरिंग एटम्स, और इसकी वजह से क्या होता है कि होल द क्रिस्टल ऑसिलेट्स विद सम कलेक्टिव ऑसिलेशन. और इसकी वजह से क्या होता है, कलेक्टिव ऑसिलेशन की वजह से क्या होगा कि एक आपका इलास्टिक वेव्स, और जिसको बोलते हैं हम लैटिस वेव, वो प्रोड्यूस हो जाती है इन द क्रिस्टल्स इन दैट सॉलिड्स. and the solids can oscillate in many different modes of oscillation, varying from zero frequency, which is lowest frequency, to the maximum frequency. तो उसके बिहार पे जब कैलकुलेशन, उसमें डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ऑफ फोनॉन्स का भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया. डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ऑफ फोनॉन्स को उन्होंने
एवरेज एनर्जी ऑफ एटम्स के साथ जब इन्होंने मल्टीप्लाई करा करके जब टोटल कैलकुलेशन किया तो ही व्हाट ही हैड फाउंड दैट CV at low temperature was 12 to the power 12 pi to the power 4 upon 5 r t upon theta d को whole cube. This relation he has found at low temperature. और ये रिलेशन एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा भी जाता है, अपने UPSC एग्ज़ाम्स में या किसी और एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, तो ये रिलेशन आप याद कर लीजिएगा. तो इस तरीके से व्हाट वी हैव ऑब्जर्व कि डीबाई ने बताया कि जो हमारा स्पेसिफिक हीट है वो T क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है एट लो टेम्परेचर, एंड एट हाई टेम्परेचर द स्पेसिफिक हीट विल बी 3R विच वाज आल्सो गिवन बाय द Dulong-Pettit and Erskine model. So this was the total summary of these three models. अब क्वेश्चन ये होता है कि क्या खास बात थी हमारे डीबाई थ्योरम. डीबाई थ्योरम जो खास बात थी वो यही थी कि उन्होंने क्या किया, एक कलेक्टिव ऑसिलेशन को एज्यूम किया. डीबाई ने बोला कि नहीं, जो हमारा एक एटम वाइब्रेट होता है तो उससे अदर एटम्स जो उसके नेबरिंग एटम्स होते हैं वो कपल्ड होते हैं. तो इस तरीके से हमारा कपल्ड वाइब्रेशन होता है, कपल्ड ऑसिलेशन होता है. तो कपल्ड ऑसिलेशन को इन्होंने इग्नोर कर रखा था आइंस्टीन ने, इस वजह से उनकी थ्योरी गलत आंसर प्रेडिक्ट की. तो इन्होंने जब कपल्ड ऑसिलेशन को कंसिडर किया और फिर उसके बाद इन्होंने इसमें डेंसिटी ऑफ फोनॉन्स का भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया. तो फिर जब कैलकुलेशन किया तो उन्होंने पाया कि हाँ, जो एक्सपेरिमेंटली T क्यूब के प्रोपोर्शनल था लैटिस स्पेसिफिक एट लो टेम्परेचर, वो ऑब्जर्व किया गया. ओके, सो दिस वाज द टोटल समरी ऑफ दिस वीडियो. ओके, थैंक यू. विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो.